Coming to you live from the India Today studios here in Noida. Ladies and gentlemen, today the top focus for us is going to be the allegations, serious allegations which have been made. Because when you talk about Ram Temple, one of the most emotive issues, there are millions of people, those who have from 1 rupee to 1 crore, have come out with their emotions, with their the faith, and have given money to the Temple Trust for the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Now, with these allegations which have now come to the fore, this raises a serious question as far as the entire Temple Trust is concerned. One thing is for sure, it merits a very serious investigation. Now, this controversy has erupted after Aam Aadmi Party and the Samajwadi Party have alleged that a piece of land which was bought for rupees 2 crore rupees from its owners was sold to the Ram Janmbhoomi Trust for rupees 18.5 crores. All this happened within a span of just a few minutes. The big question now is, has there been some sort of scam in this dealing? Who is now benefiting from a 825% markup in just 600 seconds? Yeah, guys. 2 crores to 18.5 crores in a matter of minutes. A staggering 825% profit in just 600 seconds for the seller. This is what the opposition has alleged happened in an Ayodhya land purchase by the Ram Janmbhoomi Trust. भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे ये जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18 करोड़ 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। What makes the deal murky is the allegation that there was only a difference of 10 minutes in signing both deals. Trust members Anil Mishra and Ayodhya Mayor Rishikesh Upadhyay are listed as witnesses in the two deals. यही वो जमीन है जिस पर इतना हंगामा बरपा है। दरअसल ये जमीन कुसुम पाठक के नाम पर थी और जिसे रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से अग्रीमेंट कुछ साल पहले किया गया था, और उसी जमीन को अब न सिर्फ उसका रजिस्ट्री कराई गई बल्कि इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिलहाल उसका अग्रीमेंट करा लिया है। The opposition is asking who's the actual beneficiary of 16 crore rupees profit made in this land deal. Sultan Ansari, the man who bought the land initially and sold it minutes later to the trust, wasn't home when the India Today team reached his residence in Suhati village. बीच बहती गांव में एक आलीशान बंगला, एक आलीशान घर आप देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में इसको बनाया गया है, और तस्वीरें आप देखिए। आज तक ग्राउंड जीरो पर आया है पड़ताल करने के बाद, मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा। काफ़ी नया न्यूली बिल्ड घर नज़र आता है। ऊपर टेरेस भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, और छत भी पड़ी हुई है। दरवाजे आपको देखेंगे नए हैं, कूलर नया लगा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी तुरंत हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शायद एक मुट्ठी को पैसा, एक मुश्त मिला है, जिसके बाद ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। The Ayodhya Temple Trust has denied any wrongdoing in the land deals. हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। वह ज़मीन उन्होंने दर्शाया है कि वो वर्षों पूर्व उनके अनुबंध की ज़मीन थी। वो ट्रस्ट प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और आज उसको क्लियर भी करेगा कि कब की उनकी ज़मीन है। तो राजनीतिक लोगों ने इसको उठाया है और अनावश्यक इसमें तिल का ताड़ करें, दूध का दूध, पानी का पानी, वो क्लियर हो जाएगा।
The BJP is treading cautiously as the issue has snowballed into a political scandal. देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, राष्ट्र उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य होगा। With the Ayodhya temple once again in the spotlight, old allies, the BJP and the Shiv Sena, are once again at loggerheads. राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा भी जमा किया, घर घर में जाकर, उसके ऊपर भी बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो सके। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है, उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। इन जो जानकारी सामने आई है, मुझे लगता है गड़बड़ है। शिवसेना दल राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए वे अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। क्या अधिकार है उनको हिंदुत्व के बारे में बोलने का? कांग्रेस दल ने 22 वकीलों की फौज देश के उच्च न्यायपालिका में लगाई थी ताकि राम मंदिर का फैसला तुरंत न आए, देरी से आए। उस कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता साझा करती है। A mandir in the name of Lord Ram, the Maryada Purushottam king, is now caught in an unsavory scandal. The charges of financial irregularities have cast a shadow on the Ayodhya Temple Trust, which has raised over 3,200 crore rupees till March the 31st for the construction of the temple. With Kumar Abhishek and Samarth Srivastav in Ayodhya, Bureau Report, India Today.